Hello students, today we are discuss about class 8 chapter combustion and flame. In this chapter we are discuss about various type of combustion process and various type of fuels and flames. Okay, then first of all we are discuss about first topic, combustion. Combustion, we know that we are use various type of fuels and various type of liquids, gases and solids in our daily life. So, in this chapter, we are discuss about various type of फ्यूल्स, कंबस्शन प्रोसेस एंड फ्यूल्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन, देन सिंपली कंबस्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबस्शन. ओके, इट इज burning of a substance means that substance जब क्या होगा, burn होगा, तो burning process होने के कारण या वजह से जो है large amount में heat produce होती है and heat तो रिलीज होगी ही और उसके साथ साथ वहां पर ऑक्साइड्स भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, अब ऑक्साइड्स जो फॉर्म होंगे वो डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस जो आपने कंबस्शन में यूज में लिया है, आप जिस सब्सटेंस का कंबस्शन करवा रहे हो. ठीक है, तो उसके ऑक्साइड्स ही यहाँ पर फॉर्म होंगे एंड हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी. ओके, सो जनरली देखो हम लोग जो है वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कंबस्शन प्रोसेस के लिए यूज में लेते हैं उनमें जनरली कार्बन जो है एज अ मेन कंपोनेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो जब भी उस सब्सटेंस का क्या होगा, कंबस्शन प्रोसेस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो कंबस्शन जो है वो क्या होगा कि process in which substance burn and evolution of large amount of heat, light and CO2 gas. Okay, now classification of combustion. Classification of combustion is of 4 types classified in 4 types. First is rapid combustion. Second is slow combustion. Third is complete combustion and fourth is incomplete combustion. First is rapid combustion, second is slow combustion, third is complete combustion and fourth is incomplete combustion. Now we are discussed is first rapid combustion. Rapid combustion क्या होगा, देखो ऐसा प्रोसेस या combustion in which substance burn and give large amount of heat and large amount of heat, carbon dioxide,
करेंगे सम टाइम के लिए क्या करें, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करें, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और लेकिन वो कितने टाइम के लिए होगी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा होगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे रैपिड कंबस्शन, ठीक है। रैपिड कंबस्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ कंबस्शन, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप। A is combustion of carbon. So we know that if carbon is combust, या कार्बन जब बर्न होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है लार्ज अमाउंट में वहां पर हीट रिलीज होगी एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो कार्बन का जब कंबस्शन होगा, अब देखो कंबस्शन जब भी होगा तो वो कैसे होगा, वहां पर हमें पता है कि कंबस्शन के लिए जो है नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है वो किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है मेन क्या है, कंबस्शन के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन है कि ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, तो ही सब्सटेंस का क्या होगा, कंबस्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंबस्शन स्टॉप हो जाएगा या वो जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। सो कंबस्शन ऑफ कार्बन, देन कार्बन प्लस O2, because carbon when carbon is burned, then oxygen presence in atmosphere, then oxygen, carbon combined with oxygen, chemically combined with oxygen and convert into CO2 gas and heat and light for a short time, okay. That's why this combustion is known as rapid combustion. Second is या B is combustion of hydrocarbon. Combustion of hydrocarbon, we know that about hydrocarbon. What is hydrocarbon? Hydrocarbons are substance and compounds which are formed with combination of या with combine of carbon and hydrogen. So in which hydrogen and carbon both are present, then these are combined with oxygen and give CO2 gas, water vapor, heat and light. This process is fastly complete, so that's why it is called rapid combustion. Next is combustion of magnesium. Then magnesium burn with oxygen, then its oxide is formed and heat and light also produced for a short time, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबस्शन। देन फर्स्ट कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन इज कंप्लीट फ्रॉम these 3 examples, okay. Now we discuss next combustion process is slow combustion. Next and second is slow combustion. Slow combustion जो है स्लो कंबस्शन, देखो ऐसा कंबस्शन प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है,
इसी के साथ साथ इसमें कोई हीट जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। दैट्स व्हाई इज नोन एज स्लो कंबस्शन। ओके, देन डेफिनेशन ऑफ दिस कंबस्शन इज कि कंबस्शन in which no heat produced and temperature remain constant या unchanged of a substance in this process is known as slow combustion. Then example of this combustion is first example is digestion of food. It is example of slow combustion because food is a combust and release energy but not heat produce. एनर्जी वहां रिलीज होगी डाइजेशन प्रोसेस में। जब फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा, तो उस कंडीशन में वहां पर हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है एज अ स्लो कंबस्शन का एग्जांपल है। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्लो कंबस्शन। सेकंड इज yellow phosphorus oxidized at room temperature. These are example of slow combustion. Okay, next combustion process is complete combustion. तो देखो complete combustion क्या होगा कि जब सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली उसका क्या हो जाए, बर्निंग प्रोसेस उसका जो है कंप्लीट हो जाए या वो कंप्लीटली किसी और अदर कंपाउंड में यानी कि CO2 में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उस कंबस्शन प्रोसेस को ही जो है हम लोग क्या बोल लेंगे, कंप्लीट कंबस्शन। ओके, थर्ड इज कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन इज कंबस्शन इन विच या process in which sufficient quantity of oxygen will be present। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जब ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड या सफिशिएंट क्वांटिटी में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, तो कंबस्शन जो है वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट कंबस्शन। एंड इस प्रोसेस में जो है लार्ज अमाउंट में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये फास्टली क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 में। ठीक है, देन एग्जांपल, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड गिव CO2 गैस एंड हीट। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंप्लीट कंबस्शन। नेक्स्ट इज फोर्थ, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी या ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में क्या रहेगी, प्रेजेंट होगी, तो जो सब्सटेंस होगा उसका कंबस्शन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा या वो कंप्लीटली कंबस्शन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस टाइप के कंबस्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम्प्लीट कंबस्शन। ओके, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस एंड रिलीज। दिस गैस इज पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस होती है और हमें पता है कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसके साथ ये फास्टली क्या हो जाती है, अटैच हो सकती है या उसके साथ जुड़ सकती है। ठीक है, फास्टली, क्योंकि इसकी जो रेट है रिएक्शन की वो क्या होती है, ज्यादा होती है या मोर होती है, किसके कंपेयर में, जो आपके ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इजीली क्या हो जाती है, इससे
हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है, जो कि पॉइजनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग फिर से हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग अभी 4 टाइप के कंबस्शन हमने डिस्कस किया है, रैपिड कंबस्शन, स्लो कंबस्शन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हम किन्हें कहेंगे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस which are easily burned and easily catches fire are called combustible substance. Combustible substance which are easily burned are called combustible substance. Okay, now examples of these substances are pepper, petrol, wood, diesel, kerosene, etc., coal, etc. are combustible substances. Okay, now non-combustible substance which are don't catches fire easily and not burn easily. Okay, then are called non-combustible substance. Example of these substance: water, soil, etc. are non-combustible substance. Okay, then combustible, non-combustible substance जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं. Now we are discuss about conditions या suitable sources of combustion. ठीक है, तो combustion process कब होगा, जबकि उसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट पॉइंट इज combustible substance. ओके, देन combustion process देखो कब कंप्लीट होगा, जबकि सब्सटेंस जो है वो कैसा हो, कंबस्टिबल हो. बिकॉज कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर होगा तभी क्या होगा, कंबशन प्रोसेस होगा. अदरवाइज किसी भी कंडीशन में कंबशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, कंबशन सब्सटेंस होना चाहिए. ठीक है, या कंबस्टिबल होना चाहिए सब्सटेंस, जैसे कि हमने एग्जांपल अभी जस्ट डिस्कस किया है, पेपर, पेट्रोल, कोल, wood, etc. combustible substance. Second is suitable source. या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, supporting source. We know that oxygen is necessary for combustion process. So oxygen is called supporting source because combustion के लिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है या बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है. बिकॉज अगर हम लोग क्या करते हैं कि कोल है वो बर्न हो रहा है, हमने क्या किया, उसे वेसल से कवर कर दिया. तो आफ्टर कवरिंग ऑफ वेसल बर्निंग ऑफ कोल इज स्टॉप बिकॉज ऑक्सीजन जो है वहां पर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से सपोर्टिंग सोर्स की फॉर्म में जो है यहाँ पर ऑक्सीजन होती है. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एज अ सपोर्टिंग सोर्स होता है. ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है या नेसेसरी रिक्वायरमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग सोर्स for combustion. Third is ignition temperature.
इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर देखो क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पर सब्सटेंस जो है वो फायर कैच कर ले या बर्न होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इग्निशन टेम्परेचर, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसे, इग्निशन पॉइंट। ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर at which substance it catches fire and burning start. This temperature is called ignition temperature and ignition point. Okay, for example, जो कैंडल होती है, कैंडल जो है वो कैसा सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बट उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा है, लो होता है, बट रूम टेम्परेचर पर जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो खुद से अपना बर्न नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर मैच स्टिक उसके पास लेकर जाते हैं बर्न करने के लिए, तो वो बर्न हो जाती है, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, उसे उतना टेम्परेचर मिल जाता है जितनी उसे रिक्वायरमेंट होगी बर्न होने के लिए, या वो फायर को इजीली कैच कर लेती है, ठीक है। तो वहां पर वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो टेम्परेचर ही उसके लिए क्या कहलाएगा, इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन पॉइंट। ओके, सो कंबशन प्रोसेस कंप्लीटेड। ओके, तो कंबशन प्रोसेस जो है वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम लोग फ्यूल्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि फ्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल। फ्यूल्स क्या है, देखो वी नो दैट, हम लोगों को देखो सभी को पता है कि फ्यूल्स जो हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूल कहलाते हैं, ठीक है। अब फ्यूल जो है आपको पता है कि इसके फॉर्मेशन में या इनका जो है फॉर्मेशन इतना इजीली नहीं हो पाता है, इनके को फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा क्या होती है, टाइम लग जाता है, मेनी ऑफ इयर्स इनके फॉर्मेशन में लगते हैं, ठीक है। तो फ्यूल जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो फ्यूल्स सब्सटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सब्सटेंस विच आर इवोल्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्यूल कहलाएंगे, ठीक है। अब फ्यूल जो है देखो उनको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फ्यूल हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फ्यूल्स की, ठीक है। तो फ्यूल के जो है उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ए इज सॉलिड फ्यूल, सेकेंड इज या बी इज लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल देखो क्या होंगे कि ऐसे फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड फ्यूल। और दीज फ्यूल आर जनरली यूज्ड इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये जो फ्यूल हैं वो जनरली रूरल एरियाज में क्या होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल जो है इनके क्या क्या होंगे, कोल, कोक, फिर चारकोल, वुड, एनिमल्स, dung cake, agricultural waste, etc. are solid fuels. तो कोल, कोक, चारकोल, वुड, एनिमल, डंग केक्स एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो ये सभी हम लोग कहाँ यूज में लेते हैं, हम लोग तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कहाँ यूज में ले जाते हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो स्मॉल
विलेजेस हैं, ठीक है, या कस्बे जो है, टाउन जो है, उनमें जनरली क्या होते हैं, यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, फूड के प्रिपरेशन में या कुकिंग के प्रोसेस में जो है यहाँ पर इनका यूज जनरली किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्या मिलती है, एनर्जी, या ये भी जो है हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अ सॉलिड फ्यूल बिकॉज it present in its state is solid state. Okay, next is liquid fuel. Liquid fuel क्या होंगे, देखो, liquid fuels are fuels which are present in vapor liquid, या liquid vapor की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब ऐसे फ्यूल हैं ये जो जिनका जो है जनरली यूज हम क्या कर रहे हैं, कार, स्कूटर। तो फ्यूल्स विच आर यूज्ड रनिंग ऑफ कार, स्कूटर, बाइक एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्यूल इज आर पेट्रोल, डीजल, kerosene, etc. Okay, petrol, diesel, kerosene, etc. These are liquid fuels. Okay, and petrol, diesels are generally used in running a car, scooter, bikes, etc. Kerosene is the most commonly used liquid fuel. Next is gaseous fuel. Gaseous fuels are mixture of various type of hydrocarbon and gases are called gaseous fuel. Examples of these fuels are LPG, CNG, producer gas, water gas, etc. are gaseous fuel. LPG and CNG जनरली इनकी फुल फॉर्म जो है पूछी जाती है। LPG इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिनका यूज जनरली हम लोग कहाँ कर रहे हैं, हमारे जो हाउस में हम लोग जो गैस का यूज करते हैं कुकिंग के लिए, तो वो जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो है LPG गैस ही क्या होती है, फिल की जाती है। और LPG गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। एंड LPG CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो ये वेरियस टाइप ऑफ गैसियस फ्यूल की फॉर्म में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। देन ये तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल यानी कि फ्यूल के क्लासिफिकेशन की बात की है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि फ्यूल जो है उसके क्या कैरेक्टर होने चाहिए, क्या कैरेक्टर फ्यूल्स के होने चाहिए। तो फ्यूल्स के कैरेक्टर जो हैं हम लोग देखो अगर बताएं या काउंट करें तो फ्यूल्स कैसे होने चाहिए। सबसे पहली बात कि फ्यूल जो है कंबस्टिबल होने चाहिए, इजीली जो क्या हो जाए, कंबस्टिबल हो, बट उनका जो इग्निशन टेम्परेचर हो वो रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि उनका इजीली क्या किया जा सके, स्टोरेज किया जा सके, यानी कि स्टोर उनको जो है इजीली हम कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो जाए उनका, ठीक है। तो इजीली अगर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा यानी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो फ्यूल जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इग्निशन पॉइंट हाई होना ही चाहिए रूम टेम्परेचर से, ठीक है। इसके अलावा जो फ्यूल्स होते हैं हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए या लार्ज क्वांटिटी में उनसे हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्यूल जो है आफ्टर कंबशन उनसे एश
या रेजिड्यू नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, अगर प्रोड्यूस होता भी है तो वो कम क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कैरेक्टर जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी फ्यूल में, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, फ्यूल के कैरेक्टर, यानी कि अगर ये कैरेक्टर्स जो हैं प्रेजेंट होंगे तो वो फ्यूल क्या होगा, बेस्ट फ्यूल में काउंट होगा, ठीक है। किसमें काउंट होगा, बेस्ट फ्यूल, ठीक है। तो ये हमने फ्यूल के कैरेक्टर की भी बात कर ली कि फ्यूल जो है वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ इनका जो है जनरली यूज होता है, ठीक है। कुछ फ्यूल देखो इम्पोर्टेंट्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के होते हैं जो जनरली हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, जैसे एरोप्लेन है, ठीक है। तो एरोप्लेन जो होते हैं या रॉकेट जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स क्या होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। रॉकेट जो होते हैं उनमें फ्यूल जो है वो प्रोपेलेंट बोला जाता है, बिकॉज उनमें फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी ऐड किया जाता है, तो उन्हें एज अ प्रोपेलेंट हमने टर्म दी है, तो प्रोपेलेंट उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूल के बारे में कुछ वेरियस जो है हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं उसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कंबस्शन प्रोसेस, यानी कि जो हमारा चैप्टर था कंबस्शन एंड फ्लेम, तो उसमें हमने कंबस्शन टॉपिक डिस्कस किया। कंबस्शन टॉपिक में हमने कंबस्शन के टाइप डिस्कस किए या क्लासिफिकेशन उसका डिस्कस किया, उसको हमने 4 टाइप में क्या किया था, डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारे पास या ए जो हमने दिया था वो था रैपिड combustion, second is slow combustion, third is complete combustion and fourth is incomplete combustion. After that हमने combustible and non combustible substance के बारे में डिस्कस किया कि कौन से सब्सटेंस combustible होंगे और कौन से सब्सटेंस नॉन combustible होंगे। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था combustion के लिए जो है कौन कौन सी कंडीशन होगी रिक्वायर्ड, वो हमने डिस्कस की, ठीक है। आफ्टर दैट हमने फ्यूल जो टॉपिक था हमारा वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, देयर स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। देन सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेसिस पे भी हमने फ्यूल को डिवाइड कर लिया और फ्यूल के जो है कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ओके। तो अभी एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग इसमें जो फ्लेम हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, ओके। थैंक यू।